ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا باپ ایک ڈرائیور تھا۔ اس کی مالکن بہت خوبصورت اور کم عمر تھی۔ ایک دن میری سالگرہ پر میرے گھر آئی اور تحفے میں عجیب سا ڈبہ دیا جس کی چابی نہیں تھی۔ میں نے وہ ڈبہ شو پیس سمجھ کر سجا دیا، لیکن اب یوں لگتا کہ ہر وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی دوران پتہ چلا کہ اس مالکن نے خودکشی کر لی ہے اور جاتے جاتے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ اب میں مالکن بن گئی تھی۔ جب ایک دن وہ ڈبہ مجھ سے نیچے گر کے ٹوٹ گیا اور مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، یہ جان کر کہ مالکن نے ساری جائیداد میرے نام اس لیے کی کیونکہ 15 سال تک میڈم رات کو... جس انسان کے اندر احساس ہو وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اسی احساس کی وجہ سے پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں، پر کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جسے ہم قبول نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میرا نام مقدس جمال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، مگر میرے ماں باپ نے مجھے کانچ کی گڑیا بنا دیا تھا۔ ذرا سی خروش بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب ایک بار مجھے تیز بخار ہوا تھا تو اماں ابا ساری رات میرے لیے روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ باہر بہت تیز آندھی چل رہی تھی، پر ابا کسی نہ کسی طرح مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، یہاں تک کہ میرے ابا کے پیروں میں موجود جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھے بھی اپنے ماں باپ دونوں سے بہت محبت تھی۔ ابا بہت نرم مزاج تھے، پر اکثر سختی کر جاتے اور پھر ابا مجھے منانے کے لیے سو جتن کرتے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ابا جہاں کام کرتے تھے وہاں سے ان لوگوں نے نکال دیا تھا کیونکہ ابا میرے بخار کی وجہ سے کئی دن کام پر نہ جا سکے۔ گھر میں فاقے شروع ہو چکے تھے۔ اماں ابا خود بھوکے رہ لیتے تھے، مگر مجھے کبھی بھوکی سونے نہیں دیا تھا۔ ایک دن گھر میں کھانا صرف ایک ہی فرد کے لیے تھا اور اماں ابا نے مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی۔ جب اماں نے مجھے کھانا کھانے کے لیے دیا تو میں نے پوچھا، آپ نے اور ابا نے کھانا کھایا؟ تو اماں نے کہا، ہاں ہم کھانا کھا چکے ہیں، تم کھاؤ شاباش، اور وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مجھے اماں ابا پر بہت پیار آتا کہ ان کو اپنی نہیں بس میری فکر ہے۔ میں نے کہا، ابا جس طرح آپ کے لیے مجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں، اسی طرح مجھے بھی دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ اور میں نے ایک روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہم کھانا کھانے لگے۔ ابا نے مسکرا کر مجھے دیکھا، کہنے لگے، بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، احساس کرنے والی، ماں باپ کا خیال رکھنے والی۔ تو میں نے ابا سے کہا، ابا آپ کو پتہ ہے میں تو اسکول میں بھی سب سے کہتی ہوں اللہ سب کو میرے ابا جیسے ابا دیں جو میرے لیے میرا سب کچھ ہیں۔ تو ابا نے میرا ماتھا چوم لیا اور اماں کہنے لگی، ہاں ماں تو تمہاری دشمن ہے جس کا ذکر کرنا بھی تم پسند نہیں کرتی۔ تو ہم باپ بیٹی ہنسنے لگے تھے اور اماں ناراض ہو گئی تھیں۔ ابا نے کہا، ایک بیٹی کی ماں ہو اب تو ناراض ہونا چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو مجھے دوسری شادی کرنی پڑے۔ اور اماں پیر پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی اور ابا مجھ سے کہنے لگے، مقدس بیٹا، رشتہ کوئی بھی ہو، جب اس رشتے کو وفاداری اور ایمانداری سے نبھایا جائے اور اس رشتے پر اعتبار کیا جائے تو کبھی کوئی اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ زندگی میں جتنی محبت ضروری ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ایک ذمہ داری اور احساس کرنے والا شخص ضروری ہوتا ہے جو ہماری قدر کر سکے۔ تم ابھی چھوٹی ہو سکتا ہے میری بات کو نہ سمجھ سکو، پر اگر زندگی میں آگے میں نہ رہوں اور تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص آئے تو ایک ذمہ دار اور عزت دینے والے شخص کا انتخاب کرنا۔ میں نے ابا کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ میں نے کہا، ابا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کبھی آپ کو کچھ ہو، اور ویسے بھی ابھی تو آپ کو دوسری شادی کرنی ہے۔ اور ہم دونوں ہنسنے لگے تھے۔ اپنوں کے ساتھ گزرا وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے، جو ایک سنہری یاد بن کر رہ جاتا ہے، اور بچپن کی خوبصورت یادیں تو بڑھاپے تک انسان کا پیچھا کرتی ہیں۔ میں 7ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی جب ابا کچھ پریشان سے گھر آئے تھے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، اور اماں بھی کام چھوڑ کر ابا کے پیچھے گئیں۔ مجھ سے بھی رہا نہ گیا جب ابا اماں سے کہہ رہی تھیں، سائقہ واپس آ چکی ہے، اسی شہر میں آج ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ اور پھر ابا بات کرتے کرتے رکے کیونکہ ابا نے مجھے کھڑے دیکھ لیا تھا، اور پھر کہنے لگے، میری جو نیو جاب لگی ہے ڈرائیور کی وہ سائقہ کا چچا ہے، اور میں نہیں جانتا تھا ورنہ کبھی نہ جاتا۔ تو اماں نے کہا، کیا ہوا؟ ہمیں تو ضرورت تھی پیسوں کی، ابھی ہماری بیٹی چھوٹی ہے،
कल को बड़ी होगी 100 जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। तो अब्बा चुप हो गए और जब मैंने अम्मा से पूछा अम्मा साइका कौन है, तो अम्मा ने कहा कि एक अमीर माँ बाप की बेटी है। 10-11 साल पहले ये मुल्क छोड़कर चली गई थी पर दोबारा वापस आ गई है। तुम्हारा बाप कभी पहले ड्राइवर हुआ करता था। तो मैंने अम्मा से कहा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तो अम्मा ने कहा क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने कभी कर्ज लिया था उससे, अब इनको डर है कहीं मांग न ले। और मैं बात को समझते हुए दोबारा अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगी। हमने आज गुड्डे गुड़िया की शादी रखी थी और अम्मा हमें खाना बना कर दे रही थी और अम्मा ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े सिलाई करके दिए थे। और जब गुड़िया की रुखसती होने लगी तो मेरा बड़ा दिल खराब हुआ। मैं अपनी गुड़िया किसी को नहीं देना चाहती थी और अपनी सहेली से कह दिया अगर तुम्हारे गुड्डे को यहीं रहना है इस घर में तो ठीक, वरना अपना गुड्डा उठाओ और चली जाओ। और अम्मा हमारी बातें सुनकर हंस रही थी और मुझे कहने लगी मेरी शहजादी बेटी जो गुड़िया होती है उससे एक न एक दिन पिया के घर जाना होता है। आज गुड़िया को जाना, कल को तुम्हें भी जाना होगा ससुराल घर। तो मैंने अम्मा से कहा मैं कभी नहीं जाऊंगी, मुझे अब्बा हरगिज ससुराल घर नहीं भेजेंगे। मैं अब्बा को बताऊंगी कि वो दूसरी शादी कर लें, आप मुझे खुद से दूर करना चाहती हैं। और अम्मा मुझे डांटने लगी और अब्बा दरवाजे पर खड़े हंसने लगे। और अब्बा ने कहा मेरी बेटी मेरी दूसरी शादी करवा कर छोड़ेगी। तो अम्मा ने कहा आपने इसको ख़राब करके रख दिया है, देख लें कैसी बातें कर रही है। तो अब्बा ने कहा तुम क्यों मेरी बेटी के दिमाग में गलत बातें डाल रही हो, ये मेरी बेटी है, हमेशा मेरे पास रहेगी, मैं कभी अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करूँगा। अब्बा मैडम के घर जाने लगे थे, इनके ड्राइवर थे और अक्सर मेरे लिए कुछ तहाइफ लाते। तो अम्मा कहती कि आप इस औरत से ना लिया करें सब कुछ। तो अब्बा कहते वो अपनी खुशी से मुक़द्दस के लिए सब कुछ देती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर तुम जानती हो मैं मजबूर हो जाता हूँ। दिन यूं ही गुजरते चले गए जब एक दिन अब्बा ने कहा मेरी बेटी की सालगिरह आ रही है और मैं इस बार अपनी बेटी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। अब मेरी इतनी हैसियत हो चुकी है कि अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। मैं भी बहुत खुश थी। मैं तब 13-14 साल की थी और अम्मा ने मेरी सहेलियों को भी मेरी सालगिरह पर बुलाया था। मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था वो। और जब केक काट रही थी तब एक खूबसूरत लड़की हमारे घर में दाखिल हुई थी और अब्बा से कहने लगी क्या बात है, मुझे इनवाइट भी नहीं किया और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो अब्बा ने कहा ऐसी बात नहीं, बैठे आप। पर वो औरत मुझसे मिलने लगी, मुझे कितनी देर अपने सीने से लगाए रखा और फिर एक गिफ्ट दिया जिसमें खूबसूरत घड़ी थी। वो बहुत अच्छी औरत थी और कुछ देर बैठने के बाद चली गई। अम्मा ने मुझसे वो घड़ी ले ली, कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं इस औरत से कुछ लेने की, वो अब्बा की मालकन थी जिनके यहाँ अब्बा ड्राइवर थे। अब्बा परेशान हो चुके थे और मैं अपनी सहेलियों को गिफ्ट दिखा रही थी पर जानती नहीं थी कि आने वाले वक्त में मुझसे ये खुशियाँ छिन जाएंगी। वक्त गुजरता गया। अब अक्सर वो मैडम मेरे लिए कपड़े, खिलौने, बहुत सारी चीज़ें लाती। मैंने एक दिन उनसे कहा आप हमारे घर ना आया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देती हैं। तो कहने लगी एक दिन इन सब की कीमत तुम अदा कर देना। और तब अम्मा ने उसकी ये बात सुन ली। अम्मा ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमसे सब कुछ तो छीन लिया, अब कुछ और छीनना बाकी रह गया है क्या। आज के बाद कभी घर मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर वो चली गई। इस औरत के माथे पर ना कोई बल था और ना कोई शर्मिंदगी, पर आंखों में आंसू थे, नदामत के आंसू जिनको वो बार बार साफ कर रही थी। वक्त गुजरता गया, मैंने मैट्रिक कर लिया और अब्बा ने मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दिया था और मुझे खुद छोड़ने और लेने आते। और लड़कियां मुझसे कहती तुम एक ड्राइवर की बेटी हो पर नखरे तुम्हारे किसी मिनिस्टर की बेटी वाले हैं। तो मैंने कहा हर बेटी का बाप उसके लिए सब कुछ होता है, चाहे मिनिस्टर समझो चाहे जो भी, मुझे तुम लोगों की तरह दिखावा करने की आदत नहीं। मैं वहाँ से जाने लगी तो वो लड़की मुझसे झगड़ पड़ी और प्रिंसिपल तक बात चली गई। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अमीर बाप की बेटी थी, पर मुझे बहुत डांटा और अब्बा को भी कॉल कर दी। पर अब्बा की बजाय वो मैडम आई थी जिनको देखते हमारी प्रिंसिपल भी खड़ी हो गई थी और मैडम ने आकर मेरा माथा चूमा, कहने लगी क्या हुआ हमारी प्रिंसेस को। तो मैंने सब कुछ उनको बता दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा हम नहीं जानते थे, आप इस लड़की को जानती हैं। और तब मैडम ने जो अब्बा की मालकन थी प्रिंसिपल की अच्छी खासी की और इन लड़कियों ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मालकन मुझे अपने साथ घर ले आई, कहने लगी आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। उनका घर बहुत बड़ा था
मालकन ने मुझे पूरा घर दिखाया और फिर अपने कमरे में ले आई। उनका कमरा बहुत खूबसूरत था। मैं सब कुछ देखकर दंग रह गई थी। और फिर मालकन ने मुझे एक खूबसूरत ड्रेस दिया था। कहने लगी ये मैंने अपनी बेटी के लिए रखा था। सोचा जब उसकी शादी होगी तो उससे कहूँगी ये ड्रेस पहने, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उसे ये ड्रेस दे सकूं, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। जब तुम्हारी शादी हो तो इस ड्रेस को पहनना। मैं वो जोड़ा लेना नहीं चाहती थी, वो बहुत कीमती ब्राइडल ड्रेस था, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे थमा दिया था। और फिर अब्बा को कहा मुझे घर छोड़ आएं। और मैं अब्बा से पूछने लगी जब प्रिंसिपल ने आपको कॉल की तो आप क्यों नहीं आए? तो अब्बा ने कहा मैं आना चाहता था, पर मालकन ने कहा वो ऐसे लोगों को सीधा करना जानती हैं। आज एक बार सीधा कर दिया है तो वो दोबारा कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और मुझे खुशी भी बहुत थी, मालकन मेरा इतना करती हैं। जब घर पहुंची तो अम्मा ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और अम्मा ने वो जोड़ा लेकर फेंक दिया था, पर अब्बा ने वो जोड़ा उठा लिया और उसको देखने लगे थे। अब्बा की आंखों में आंसू थे जिनको छुपाने के लिए घर से बाहर चले गए। अम्मा ने कहा हमने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी? जो तुमने अमीर मालकन देखी तो उसके गुण गाने लगी। तुम्हें तो अपनी माँ शुरू से पसंद नहीं थी। तुम बाप बेटी कभी मेरी नहीं सुनते। वो औरत तुम्हें मुझसे छीन लेगी। आज अपने घर लेकर गई है, कल को इस मुल्क से भी ले जाएगी और मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने अम्मा से कहा क्या हो गया अम्मा? वो बस आज कॉलेज आई थी, कुछ मसला हो गया था और आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। आप कहती हैं तो मैं कभी उनसे नहीं मिलूंगी। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर आप खुद को मत तकलीफ दिया करें, मुझे बहुत बुरा लगता है। और अम्मा मुझे अपने सीने से लगा कर रोने लगी थी। कहने लगी मेरी बेटी मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। वक्त गुजरता गया, मैंने मालकन से मिलना छोड़ दिया। जब एक दिन अब्बा खुद मुझे मालकन के पास ले गए। मैंने कहा अब्बा अगर अम्मा को पता चल गया तो हम दोनों को घर में दाखिल नहीं होने देंगे। तो अब्बा ने कहा बेटी डरो मत, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है और मालकन की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। और जब मैं उनके कमरे में गई तो वो वाकई बीमार थी और उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था जो शायद डॉक्टर था। मालकन ने मुझे देखा तो मुस्कुराई और इस लड़के से कहने लगी ये मुक़द्दस है। इस लड़के का नाम अरसलान था और इसके बाद वो मुझसे मिलने कभी कॉलेज के बाहर और कभी घर आ जाता। और अम्मा ने अब्बा से कहा ये क्या तमाशा है, अब वो औरत हमसे क्या चाहती है? पर कुछ दिनों बाद अरसलान ने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। उसकी माँ जिंदा नहीं थी, बस बाप था और एक छोटा भाई और बहन थी। वो मालकन की कज़न का बेटा था। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था, पर अब्बा ने सोचने की मोहलत मांगी थी। फिर अब्बा ने मुझसे पूछा अरसलान के बारे में, तो मैंने कहा अब्बा रिश्ता आप जहाँ भी करें मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, मेरी जिससे भी शादी होगी वो शख्स मेरे साथ इस घर में रहेगा, वरना मुझे अरसलान भी कबूल नहीं। और अब्बा हक्का बक्का मुझे देखने लगे और मैं अपने कमरे में आ गई। अम्मा ने कहा मुक़द्दस तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, हर बेटी को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना होता है। ये कोई गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं जो चंद घंटे खेलकर ख़त्म हो जाए, ये उम्र भर का फ़ैसला होता है। मैंने अम्मा अब्बा की कोई बात नहीं सुनी और अपने फ़ैसले पर कायम रही। जब अरसलान के वालिद ने इस बात पर गुस्सा किया और जब मालका ने मुझे फ़ोन किया तो कितनी देर मेरी बात सुनकर हंसती रही। मैंने पूछा तो कहने लगी बस कुछ याद आ गया था। दिन ऐसे गुजरते गए जब एक दिन अरसलान ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं ऐसे ना करूं, लोग क्या कहेंगे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने घर को छोड़कर मैं नहीं रह सकता, पर हाँ मैं तुम्हारे माँ बाप को अपने साथ रख सकता हूँ। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था। जब मैंने बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी जब मोहल्ले से मेरे लिए एक और रिश्ता आ गया और उनके सामने भी वही शर्त रखी और वो लोग मान गए। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल को खुशी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। अम्मा ने कहा माना मेरा साइका से लाख इख्तलाफ सही, पर अरसलान इसका भांजा मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत देखी है, इज्जत देखी है, और जितने अदब से वो हमें मिलता है ऐसे लड़के बहुत नेक और अच्छे होते हैं। इसमें कोई बनावट नहीं, हालांकि इतना बड़ा डॉक्टर है। अम्मा अब्बा से बातों में लगी थी, पर मैं अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अब्बा ने अभी तक किसी को मेरे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की थी। अब्बा कहते मैं मोहल्ले में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, मुझे वो लोग लालची लगते हैं, और सोचने का वक्त मांगा। फिर मेरी जिस दिन सालगिरह थी मालकन हमारे घर आई।
جس کے ہاں میرا باپ ڈرائیور تھا۔ وہ مالکن بہت خوبصورت تھی اور اس دن میری سالگرہ پر میرے گھر آئی اور تحفے میں عجیب سا ڈبہ دیا جس کی چابی نہیں تھی۔ میں نے وہ ڈبہ شو پیس سمجھ کر سجا دیا، پر دل کو عجیب سا دھڑکا لگا رہتا جیسے اس ڈبے میں کچھ ہے، اور اسی دوران پتہ چلا کہ اس مالکن کی موت ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں اپنے سامنے دیکھا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، پر کب معلوم تھا کہ ایک ہنستی مسکراتی خوبصورت عورت یوں اچانک چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اور مجھے مزید حیرت ہوئی جب مالکن جاتے جاتے ساری جائیداد میرے نام کر گئی۔ اب میں مالکن بن گئی تھی۔ جب ایک دن وہ ڈبہ مجھ سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا اور مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، یہ جان کر کہ مالکن نے ساری جائیداد میرے نام کیوں کی تھی، میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی اور بھاگتی ہوئی ابا کے پاس گئی۔ میں نے ابا سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں تصویریں اور کاغذات دیکھ کر ابا بھی پریشان ہو چکے تھے اور اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے ابا سے کہا آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا سچائی کیا ہے، میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے؟ تو ابا نے کہا کوئی سچائی نہیں، تم صرف ہماری بیٹی ہو، ہماری مقدس ہو۔ تو میں نے ابا کے سامنے وہ خط کیا جس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، جس کی ایک ایک بات سچ تھی۔ میں نے ابا سے کہا ابا مقدس نام رکھ لینے سے میں مقدس نہیں ہو سکتی، میں کبھی پاک نہیں بن سکتی۔ تب ابا نے کہا جب اس دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ معاشرہ، یہ فطرت طے کرتی ہے اس کا وجود کیا ہے۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہم نے تمہیں پالا ہے، کیا یہ تمہارے لیے اہم نہیں؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھانا چاہا، پر میں ابا کو دیکھ رہی تھی جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ابا سے کہا مجھے سچائی جاننی ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ابا سچائی بتانے سے گریز کر رہے تھے، پر مجھے لگتا ابھی بھی شاید ابا سچ بتا دیں تو ہو سکتا ہے جو مالکن نے سب کچھ لکھا وہ سب جھوٹ ہو، ایک مذاق ہو۔ ابا نے بتایا کہ میں اور جمال ہم ایک کالج میں پڑھتے تھے، ہمارا آخری سیمیسٹر چل رہا تھا جب مالکن سائیکا نے جمال سے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، پر جمال نے کہا کہ وہ صرف کالج فرینڈز ہیں اور کبھی امیر غریب کے درمیان محبت نہیں ہو سکتی، اور تمہارا باپ تو مجھے راتوں رات ایسا غائب کرے گا کہ تمہیں کبھی میری لاش بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جمال کبھی کالج نہیں آیا تھا، وہ سائیکا سے دور رہتا تھا، ہر ممکن کوشش کرتا کہ وہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ ایسا نہیں تھا جمال مالکن کو پسند نہیں کرتا تھا، پر جب سے اس کے باپ نے دھمکیاں دی تھی وہ ڈر گیا تھا، صرف اپنی بہن کی وجہ سے۔ وہ مجھے کہتا امجد اگر میری بہن نہ ہوتی تو میں کب کا سائیکا سے شادی کر چکا ہوتا۔ مجھ سے اپنی دوست کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے کچھ سوچتے ہوئے جمال کے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا اور ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور جمال کہاں گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے دن رات لگا دیے اس کو تلاش کرتا رہا، پر وہ مجھے نہیں ملا۔ اس کی بہن جو میری بیوی تھی وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پریشان تھی۔ ہم غریب لوگوں کا اپنوں کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا، اور جمال جیسا شخص جو ہر کسی کے دکھ سکھ میں بنا کسی مطلب کے، بنا کسی غرض کے مدد کرتا تھا، وہ ہنستا مسکراتا شخص ایسے غائب ہوا کہ 3 سال تک وہ مجھے نہیں ملا، اور پھر ایک رات کے 2 بجے گھر آیا تھا۔ وہ چھپتا پھر رہا تھا۔ میں اسے اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت خوش تھا۔ میں نے کہا تم کہاں تھے اور ایسے کیوں چھپتے پھرتے ہو؟ مجھ سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تم نے؟ ہم سب کتنے پریشان تھے۔ میں اپنے دوست جمال پر غصہ ہو رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں سائیکا کو اس کی شادی سے کچھ دن پہلے بھگا کر لے گیا، اور ہم پچھلے 3 سال ایسے چھپتے پھر رہے ہیں۔ سائیکا کا باپ بہت اثر و رسوخ والا شخص ہے، وہ ہمیں جینے نہیں دے رہا، اور آج میں تمہارے پاس مدد کے لیے آیا ہوں۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، اور میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تم یہیں بیٹھو۔ وہ دونوں بہن بھائی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور جمال یہ جان کر بہت خوش ہوا تھا کہ وہ ماموں بننے والا ہے۔ میں نے جو اپنی دکان لینے کے لیے پیسے جمع کیے تھے اپنے دوست کو دے دیے، پر تبھی فائرنگ ہوئی جس میں جمال مارا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا دوست، میرے بچپن کا یار مارا گیا۔ اس کی لاش کو اٹھائے میں جانے لگا تھا، پر وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنی بہن یعنی میری بیوی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور تبھی جمال نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا مجھے لگا تھا اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی کا خون ہے، پر ایک گولی اسے چھو کر گزر چکی تھی۔ پورا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر بھاگا، اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بچہ، میری اپنی اولاد، میری بیوی کے پیٹ میں گولی لگنے کی وجہ سے مر چکا ہے، اور اب کبھی میری بیوی ماں نہیں بن سکتی۔
पर उसकी जान बच गई थी। मैंने उस दिन बहुत कुछ खो दिया था। साइका मालकन को उसके बाप ने ढूंढ निकाला था और उसने जमाल और मेरी बीवी को मार दिया था, पर मेरी बीवी बच चुकी थी। वो लोग मुझे भी मार देते अगर मैं वहाँ से पैसे लेने अंदर कमरे में न जाता। मैंने अपने दोस्त, अपना बच्चा खो दिया था और फिर उस दिन अस्पताल से मैं अपनी बीवी को लेकर निकल पड़ा, पर मेरी बीवी ने कहा उसे साइका से मिलना है। मैंने कहा पागल हो गई हो, वो लोग हमें मार देंगे, हमें पागल कुत्तों की तरह तलाश कर रहे होंगे। पर मेरी बीवी ने जिद की और कहा उसे साइका के पास जाना है, क्योंकि साइका माँ बनने वाली है, उसकी कोख में मेरे भाई का बच्चा है। मैं ये सब सुनकर हैरान था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे जमाल ने नहीं बताया। तो वो कहने लगी मुझे बताया था भाई ने मरने से पहले, और कहा था मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और जब हम साइका के घर पहुंचे तो इन लोगों ने हमें पकड़ लिया। मेरी बीवी के अभी जख्म ताज़ा थे। मुझ पर एक के बाद एक क़यामत टूट रही थी, पर साइका बाहर आ गई थी। उसने अपने बाप से कहा अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो इन लोगों को छोड़ दें, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। और उसके बाप ने हमें छोड़ दिया था। साइका हमसे मिली, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने कहा ये लोग मेरे बच्चे, मेरी मोहब्बत को मार देना चाहते हैं। ये जमाल की निशानी है और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। बस कुछ दिन का इंतज़ार है, मेरे बाप को इसके बाद इस बच्चे को पैदा होते मार देंगे। पर अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो ये बच्चा तुम लोग संभाल लेना। मैं कभी इस बच्चे पर कोई हक नहीं रखूँगी। मैं कभी तुम लोगों से अपना बच्चा वापस नहीं लूँगी। मुझे उसकी जान प्यारी है। मैं चाहती हूँ ये बच्चा जिंदा रहे और कभी मेरा बाप या इसके गुंडे इस बच्चे तक ना पहुँच सकें। और उससे थोड़ी देर मिलकर हम वापस आ गए और मैं साइका के कहने पर उसी अस्पताल में दिन रात गुजारता, क्योंकि मुझे मुर्दा बच्चे का इंतज़ार था। किसी भी तरह करके डॉक्टर को अपने साथ मिलाया और किस्मत ने हमारा साथ दिया। किसी और अस्पताल से मुर्दा बच्चा उठाया और साइका के वालिद को दे दिया कि बच्चा बच नहीं सका। वो एक शैतान था जिसके लिए किसी भी जान की कोई कीमत नहीं। उसे बस अपनी बेटी चाहिए थी और साइका ने हमें अपनी पैदा होने वाली चंद घंटों की बच्ची को सौंप दिया। कहने लगी मैं कसूरवार हूँ, मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई थी, मेरी वजह से जमाल की जान चली गई। मैं तुम लोगों की मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और हम बच्ची को लेकर शहर छोड़कर आ गए। मेरी बीवी इस बच्ची को सीने से लगाए रो रही थी। इसकी ममता को करार आ गया था। वो इसके भाई जमाल की बेटी थी। साइका मुल्क से बाहर चले गई। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसने अपने बाप से जिद लगा ली। उसने कभी शादी नहीं की। उसका बाप कहता रहा पर वो नहीं मानी। और फिर उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया। वो तब भी नहीं आई थी। वो जीना नहीं चाहती थी, पर एक वक्त आया वो वापस आई जब मैं साइका के चचा के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने लगा। मुझे नहीं पता था वो लोग इस शहर वापस आ चुके हैं। और साइका इसलिए वापस आई क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था। जब मुझसे मिली मुझे लगा वो तुम्हें अपनी बेटी को वापस मांग लेगी, पर उसने मुझसे कहा उसे बस कुछ पल चाहिए। वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, उसकी आवाज़ को सुनना चाहती है, उसे जी भर कर देखना चाहती है। और मैं मजबूर हो गया क्योंकि वो अपना आखिरी वक्त अपनी बेटी के साथ, अपने जमाल की निशानी के साथ गुजारना चाहती थी। तुम्हारी माँ को मालकन इसलिए नहीं पसंद कि उसकी वजह से उसके भाई की जान गई, जिसको तुमने सारी उम्र माँ समझा। ये तुम्हारे बाप की बहन है, तुम्हारी सगी पुप्पो, पर तुम चंद घंटों की थी। हमने तुम्हें पाला, अपना नाम दिया, अपनी बेटी समझा। हम तो भूल चुके थे तुम्हें जन्म किसी और ने दिया है। और तुम्हारी सगी माँ की ख्वाहिश थी तुम अरसलान से शादी करो। अरसलान के अलावा कोई और सच्चाई को नहीं जानता। वो साइका के दोस्त, जो इसकी कज़न भी थी, उसका बेटा है, जिसको वो अपना भांजा कहती थी। और जो ब्राइडल ड्रेस तुम्हें दिया वो साइका को जमाल ने दिया था अपनी पहली कमाई से। पर इस जोड़े को कभी साइका पहन नहीं सकी। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, मुकद्दस, और तुम्हारी पहचान मेरे नाम से है। और तुमसे किसने कह दिया तुम नाजायज़ औलाद हो जमाल की? मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिस शख्स ने मोहब्बत करते हुए कभी साइका से हाथ नहीं मिलाया था, वो कैसे अपनी मोहब्बत से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर सकता है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने की खातिर कभी किसी को नहीं बताया। अगर बता देती तो इसके ख़ानदान वाले भी तुम्हें न छोड़ते। पर अब सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाने की वजह से वो लोग तुम तक पहुँचेंगे, तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। पर अगर तुम अरसलान से शादी कर लोगी तो कभी कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, क्योंकि अरसलान के बाप के आगे किसी के खड़ा होने की कोई औकात नहीं। मेरे अब्बास सब कुछ बता कर चले गए और मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई। मैं क्या समझती रही, सच्चाई क्या निकली? पर एक दुख ने मेरे दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। मेरे सगे माँ बाप के साथ बहुत जुल्म हुआ था।
जिन्होंने मोहब्बत की, और ये लोग अमीरी गरीबी के फ़र्क को लेकर इनको अलग कर दिया। काश कभी मोहब्बत दौलत के आगे ना हारती। और मुझे अपने अब्बा की बातों पर यकीन था। यकीनन मैं जायज़ थी, पर मेरे अब्बा और माँ ने बहुत कुछ खो दिया था। मैंने उनके कहने पर वही जोड़ा पहनकर और सलाम से शादी कर ली जो मेरी सगी माँ ने दिया था। हर रोज़ अपनी सगी माँ और बाप की कब्र पर जाती हूँ और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे असली माँ बाप भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।